हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईसी बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम पॉपुलेशन ओवर ग्रेटेस्ट रिसोर्स करेंगे यानी जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट हो, चाहे एनआईसी बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, कोई भी बोर्ड हो, अगर उनके सिलेबस में जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन है तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इवन की जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईसी सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईसी बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द पॉपुलेशन ओवर ग्रेटेड रिसोर्स, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अराइव हियर, पॉपुलेशन ओवर ग्रेटेड रिसोर्स। द फर्स्ट पॉइंट हियर, population as a resource. Why is the population as a resource? That is the most important question. Generally, we understand that a population means a collection of people. Let's go through. There is a meaning of population. Start at the box below. This term has been defined differently in the different context. You may find that is the meaning of population start in their science and biology textbooks. Is the difference from how it has been to the use in a social science, geography, economics, or social textbooks. There is the most important here, or social science, geography, economics, and social textbooks here. You will be learn that is a statics. This term has yet another meanings. Will be like to find out what is it. How may do it by the constituting books on the statics. However, is the present lesson we find will be use of population to be mean the collection of people living in a given geographical area or territory. This is how it is used in the sense the collection of people is seen and understood primarily in the term of number. But population is also considered as a resource, a human resource. That is important. Population also considered as a resource, a human resource. First of all, here, what does the population mean? What does population mean? The total number of people inhabiting a special area, a territory. Example, population of village, city, state, a country is world. There is a population mean. And the next here, total number of people of particular group, race, class, and category. Example, population of scheduled castes, scheduled tribes, and religious groups like a Hindu, Muslim, Christian, Sikh. There is a total number of people, particular group, race, class, and categories here. And the last meaning here, in a biological collection of the interbreedings organisms of a particular species. Example, population of tiger, deer, etc. There is an important point here. One question arrive your mind, what is a resource? That is the most important question. What is a resource? It is something that can be used and reused. Something can be used and reused. Let's look around their room. We find things like a furniture, books, notebook, pen, cups, and other. We consider them as our resources and use them in our daily life. Now let's us try to trace their origins, and these are made out of the resources which we get from nature.
The furniture is made from the timber that we obtain from the forest, and book and the notebooks are made from the woods pulps which is come from the forest. The pen is made up to the plastic which is by a product of petroleum. The cup is made of the clay found in the soil, and these are many more things which are a part of daily life extract here. And perceive there is a manufacture from the nature resources. It is the people who with there is a physical and mental effort convert the natural resource into the various good of unity. If resources are things that are used and reused, how can a population be considered a resources? We all know that the grain which are cultivated in the field, the minerals that are mined and the goods which are manufactured in the factories are all produced by people. People of the country produce and develop various facilities and services to make their lives comfortable. The facilities, whether these are a mean of transport or communication, and schools, colleges, hospital, electricity, producing of unit, infrastructure for irrigations and other, play a significant role in the development of a country. For producing and development all such as facilities and converting them into the useful resources, human beings play the role of the best resources. And without human beings, other resources cannot be developed and utilized to the properly. And therefore, the number of well as the quality of people and collective is the real and ultimate resource of a country. They are also important. In a view of above, the sheer number of people which is determined by the census and conducted at a periodical interval may be liabilities, but the quantitative population becomes the human capital of a country. For converting the number into the capital, the country has to be invest a lot in the form of improving the health and nutritional status of people, their education and specialized training and their overall quality of life. The investment of improving the quality of the people made by the state as well as the societies matter a lot. It is simply that every individual develop to be a fullest capability and engage in the development process of the country. It is therefore important to understand that people as a human resource are both an object of the development and also a participant in the development. As we discussed earlier, there is a number of people maybe not be a called resource, but there are a content factor which is a converted this number into the useful resources. This is important. The important term is arrive here, human capital. Human capital over the year, the term used to describe staff and employees in a business have changed. We have moved from the personal to be human resource to be human capital. And the human capital represent an attribute of a person that a productivity in the economical context. It is referred to the stock of productivity, skill and technical knowledge is embodied in a labor. And the next year, census. The producer of systematically is acquiring and recording information about the member of given population. The term is used mostly in a connection with the national population and door-to-door census to be taken every 10 years. The government of India, with the assistance of state, has been conducting census to be collect data about the various demographic and social economic aspects of our population. The next point here, factors making a population in a human resources. That's an important factor making a population a human resource. What are the factors that influence the role of population as the human resource? You may infer from the above discussion that the education, health and nutrition status of a people and their specialized training determine the quality of population as a human resources. But besides this, there are a key social and demographical factor that have a significant impact on the role of population as a resource. And these are, first of all, here distribution of population,
and second here growth of population, and third here population composition. We shall try to understand these three factors. Let us begin to distribution of population here. यह बात बहुत ही अजीब है कि जनसंख्या एक संसाधन हो सकती है। देखिए, जनसंख्या संसाधन कैसे हो सकती है, लेकिन ये बात सच्चाई है कि किसी देश की जनसंख्या जितनी होती है वो एक तरह के संसाधन के रूप में देखा जाता है। और हमारा टॉपिक जो आज आया है, जो चैप्टर आया है, वो भी इन्हीं बातों की तरफ इशारा करता है कि जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन। भारत में अगर मिनरल की कमी है, लेकिन भारत में एक बात महत्वपूर्ण है कि भारत की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसको विश्व स्तर पर देखा जाए तो एक संसाधन के रूप में है, क्योंकि जनसंख्या भी एक संसाधन के रूप में हो सकता है। अगर यही बात के अंतर्गत हम पहली पॉइंट की बात करें, जनसंख्या एक संसाधन के रूप में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आमतौर पर आबादी का मतलब लोगों का एक संग्रह या संख्या से है। आबादी का मतलब यही होता है कि लोगों की संग्रह कितनी है, लोगों की संख्या कितनी है। आइए नीचे दिए गए बॉक्स में जनसंख्या के अर्थ को पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि जनसंख्या का अर्थ विभिन्न संदर्भ में अलग अलग ही होता है और जनसंख्या का अर्थ विज्ञान और जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में बिल्कुल ही अलग है। अगर हम सामाजिक विज्ञान जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और पाठ्य पुस्तक की तुलना करें तो बाद में यह सीखेंगे कि जनसंख्या की इस प्रकार का अर्थ अलग है, यानी जनसंख्या का अर्थ जो है अलग होता है। क्या आपको पता लगाना पसंद करोगे कि क्या है, यानी आप इसको पता लगा पाओगे? पता लगाना बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए जनसंख्यिकी की किताब को देखें। जनसंख्यिकी की जो है काफ़ी महत्वपूर्ण किताब होती है, जिसमें हम वर्तमान पाठ में हम जनसंख्या शब्द का प्रयोग जो है मानव समूह या मानव संख्या के रूप में किया जाएगा। जनगणना में भी यही अर्थ लिया जाता है कि प्राथमिक तौर पर जनसंख्या का मतलब लोगों के समूह की संख्या से है कि लोगों की कितनी समूह संख्या एक साथ रह रही है। परंतु जनसंख्या एक संसाधन या मानव संसाधन रूप में भी माना जाता है कि जनसंख्या एक संसाधन या मानव संसाधन भी हो सकता है। अब बात यहाँ पर करें सबसे पहले पॉइंट, जैसे संसाधन क्या है, आखिर संसाधन होती क्या है। कहते हैं संसाधन की अगर हम बात करें तो वह यह है जिसमें इस्तेमाल और पुण्य इस्तेमाल किया जा सके, यानी इस्तेमाल और पुण्य इस्तेमाल करने का प्रावधान होता है, वो संसाधन होता है। कमरे में चारों ओर देखें हम विभिन्न वस्तुएं जैसे लकड़ी के सामान, किताब, कापियाँ, कलम अन्य पाते हैं और हम उन्हें अपने संसाधन के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ लिखना हो तो आप उंगलियों से नहीं लिख सकते, आपको इसके लिए पेन की आवश्यकता होगी, फिर हाथों से आप लिखोगे। अगर वो पेन नहीं होगा तब लिखोगे कैसे? तो ये संसाधन है। ये सारी चीज़ें जो आप चंद सेकंडों में कार्य प्रणाली पर कंप्लीट कर लेते हो, सब संसाधन है। आप पंखे चलाते हो, आपको गर्मी लगती है, तो ये संसाधन है। हमारी ज़िंदगी को जो जितनी चीज़ें आसान बनाती है वो सारे के सारे जो होते हैं संसाधन होते हैं। हम उन्हें अपने संसाधन के रूप में देख सकते हैं, उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपयोग और पुण्य उपयोग भी कर सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए यहाँ पर आता है सबसे पहली बात कि जनसंख्या से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले तो बात जानना पड़ेगा कि जनसंख्या से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ निकलता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाता है, यानी किसी भी क्षेत्र में विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के तौर पे कोई भी जगह हो सकता है, गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, राज्य हो सकता है, देश हो सकता है, विश्व की जनसंख्या हो सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात आता है किसी भी समूह, नस्ल, वर्ग या श्रेणी के लोगों की कुल संख्या। उदाहरण के तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक समूह जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, तो ये सारे के सारे जो हो सकते हैं एक संसाधन के रूप में, जनसंख्या के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात आता है जीव विज्ञान में किसी भी नस्ल के अंतर प्रजनन जीवों के सम्मिलित कुल संख्या, उदाहरण बाघ, हिरण आदि की संख्या। तो ये सारे के सारे शब्द जो है जनसंख्या के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो है विचारधारा है, एक महत्वपूर्ण जो है अर्थ है। आइए अब हम उनके स्रोत का पता लगाएं कि आखिर ये संसाधन क्या होती है। कहते हैं उन संसाधनों में बनाए गए हैं जिन्हें हम प्राकृतिक से पाते हैं। अगर बात करें फर्नीचर लकड़ी से बनाया गया है जो हम जंगल से प्राप्त करती हैं। पुस्तक और कापियाँ भी जंगल से ही आते हैं, जैसे लकड़ियों की जो है गुद्दी से बनते हैं। कलम प्लास्टिक से बनाया जाता है जो पेट्रोल का गौण उत्पाद है।
कप जो है मृदा से बनाई जाती है, यानी मिट्टियों से कप का जो है निर्माण होता है, जिसे हम मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ये और इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ें हैं जो हमारी दैनिक जीवन का हिस्सा है। हम उन्हें प्राकृतिक संसाधनों से ही निकालते हैं। यानी देखा जाए तो हम जितने भी दैनिक उपयोग करते हैं, जितने भी संसाधन हैं, सब के सब जो है प्राकृतिक से ही हमें प्राप्त होती है। अगर प्राकृतिक में ये चीज़ नहीं रही तो ये हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगी। कैसे संशोधित करते और निर्मित भी हम कर लेते हैं बहुत आसानी से। और यह मानव है जो शारीरिक और मानसिक प्रयोग से प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता की वस्तुओं में बदल देता है। यानी मानव ही है जो इन संसाधन को जो है बहुत आसानी से हमारे उपयोग के लिए बदल देता है। और ये सब नेचर से ही हमें प्राप्त होती है और कहीं से प्राप्त ये नहीं हो सकती। आज जितने भी सामान आप यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं इसका रूप जो है प्राकृतिक में ही मिलेगा और ये प्राकृतिक से ही बनाई जाती है। हम सिर्फ जो है उसका आकार, रूप, रंग चेंज कर देते हैं, उसको गुण को चेंज कर देते हैं। लेकिन देखा जाए तो सारे चीज़ें जो होती हैं हमें प्राकृतिक से ही प्राप्त होती है। यदि संसाधन खास वस्तु है जिसका उपयोग अगर पुण्य उपयोग किया जाता है, तो जनसंख्या एक संसाधन कैसे माना जा सकता है? अगर देखा जाए कि संसाधन एक खास वस्तु होती है, फिर जनसंख्या को हम कैसे जो है संसाधन के रूप में देख सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि अनाज खेतों में उपजता है, खनिज से खनन किया जाता है, खानों में वस्तुएं बनाई जाती है और ये सभी मानव द्वारा किया जाता है। आप समझ गए? अगर कोई खेतों में अगर खेती होती है तो खेती अपने आप तो नहीं हो सकती ना। खनिज जो है खनन से कैसे निकाला जाएगा? खुद तो नहीं निकलेगी। तो इसके लिए हमें मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है, मानव संसाधन की जरूरत पड़ती है और ये सभी मानव द्वारा ही किया जाता है। और देश के लोग विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं सेवाओं का उत्पादित एवं विकसित करते हैं जो हमारे जीवन को आरामदेह बनाती है। ये सुविधाएं चाहे यातायात के साधन हो, स्कूल कॉलेज हो, अस्पताल हो, बिजली घर हो, सिंचाई आदि कोई भी आधारभूत संरचना देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये सारे के सारे संसाधन होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। तो आप समझ गए ना कि मनुष्य संसाधन क्यों है। अगर मान लीजिए किसी जगह पर अगर व्यक्ति नहीं है तो वहाँ के सामानों का भी उपयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक मानव संसाधन नहीं होंगे किसी भी प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करना स्वाभाविक बात ही नहीं बनती है। उत्पादन के लिए ऐसी सुविधाओं के विकास और उन्हें उपयोगी संसाधनों में परिवर्तन करने के लिए मनुष्य सबसे अच्छा संसाधन की भूमिका निभाता है। बिना मनुष्य के अन्य संसाधनों का सही ढंग से विकसित और उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए संख्या के साथ साथ लोगों की गुणवत्ता दोनों ही देश के वास्तविक और स्वच्छ संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। तो देखा जाए तो इंसानों के जो गुण है, गुणवत्ता है और जो उनकी भूमिका है, वही संसाधन के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों की मात्र संख्या जो सर्वाधिक अंतराल पर जनगणना द्वारा निर्धारित किया जाता है और भार हो सकता है, लेकिन गुणवत्ता जनसंख्या देश के मानव पूंजी बन जाता है और मानव संख्या को मानव पूंजी में परिवर्तन करने के लिए देश के लोगों की संख्या एवं पौष्टिक आहार की व्यवस्था, सही शिक्षा और विशिष्ट प्रशिक्षण एवं उनके जीवन में गुणवत्ता बदलाव लाने के लिए देश के बहुत बड़ा निवेश करने की आवश्यकता पड़ती है। मानव के जीवन में गुणवत्ता सुधार के लिए सरकार एवं समाज द्वारा किया गया निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है और यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुरूप जो है विकसित हो और देश के विकास की प्रक्रिया उन्हें काम करने का मौका प्रदान किया जाए। इसलिए यह महत्वपूर्ण बात समझने की है कि मानव संसाधन के विकास के रूप में एक वस्तु और विकास में भागीदारी है। जैसे कि पहले की चर्चा किया जा चुका है कि मानव संख्या जो है संसाधन नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारक जो मानव संख्या उपयोगी साधन का परिवर्तन कर देता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप समझ गए हो कि मानव संख्या संसाधन नहीं है, लेकिन उनका गुण, उनका जो इस्तेमाल करने का तरीका है, वो संसाधन हो सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर यही हम बात करें कि संसाधन मनुष्य है, डायरेक्ट अगर ये बात को हम आपको समझाएं कि संसाधन जो है मनुष्य है, तो लोग जो है अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देने लग जाएंगे और जनसंख्या की वृद्धि इतनी कर देंगे कि जो यहाँ पर जीवन रहने के लिए भी संभव नहीं रहेगा। तो जनसंख्या कभी भी संसाधन नहीं हो सकती है, लेकिन मनुष्य के गुण, उनकी उपयोगिता, उनकी अकल, उनकी समझ, वो संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन ये तब होगा जब जनसंख्या कम रहेगी। मान लीजिए एक माता पिता के 4 बच्चे हैं और एक माता पिता के सिर्फ 1 या 2 बच्चे हैं,
अब किनका संसाधन अच्छा रहेगा? मान लीजिए उनके पास 4 बच्चे, बल उन्होंने कोई अच्छा एजुकेशन ना दिया, कोई उनका स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इतने सारे बच्चों को ध्यान देना संभव ही नहीं था। तो उनके बच्चे जो होंगे कमज़ोर होंगे और देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन जिनके पास 2 बच्चे, उन्होंने अच्छा एजुकेशन दिया, उन्होंने अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाया, बहुत अच्छा इंसान बनाया और बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए, बड़े बड़े वकील बन गए, जज बन गए। तो अगर मान लीजिए तो ये संसाधन हुए कि 5 बच्चे वाला संसाधन हुआ। तो यही बात इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आती है कि संसाधन का मतलब जनसंख्या बेशक ली है, लेकिन जनसंख्या तब संसाधन के रूप में कार्य करेगी जब वो स्वास्थ्य, अक्लमंद, बुद्धिशील रहेगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं 5 अगर बच्चे जन्म दे रहे हो तो इसका मतलब उनका पालन पोषण बहुत ही माता पिता के लिए दुष्कर्म कार्य हो जाता है। लेकिन वही अगर 2 बच्चे हैं, अगर उसको अच्छा देश के विकास में, अपने विकास के लिए करना चाहते हो तो अच्छे से अच्छे एजुकेशन की आवश्यकता होगी। तो ये संसाधन के रूप में आने वाला समय में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो जनसंख्या अधिक करने में संसाधन नहीं हो सकता है। जनसंख्या जितनी कम रहेगी उतनी उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी और वो देश का संसाधन बन सकता है। उसके पश्चात एक पॉइंट आता है मानव। देखिए, मानव पूंजी कई वर्षों में कर्मचारियों और कारोबार में जुड़े व्यक्तियों के वर्णन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द में बदलाव आया है। हम कर्मचारी से मानव संसाधन, मानव पूंजी इस्तेमाल करने लग गए हैं। आर्थिक संदर्भ में मानवीय गुणों के मानव पूंजी में दर्शाए हैं। एक व्यक्ति में सन्निहित कौशल और तकनीक ज्ञान मिश्रित रूप में संबंधित है। तो मानव पूंजी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया कि मानव पूंजी तभी बन सकती है जब वो स्वास्थ्य, ज्ञानी और जो है समझदार हो और कुछ अच्छे पोस्ट पे आके देश के नाम को उज्जवल करे, तब संसाधन हो सकता है। लेकिन वही जो कमज़ोर है, जो अपराध कर रहे हैं, जो देश के लिए खतरे का सबब बन रहे हैं, तो वो संसाधन के रूप में कभी नहीं देखा जा सकता। उसके पश्चात है जनगणना। देखिए, जनगणना जो होती है किसी भी दिए गए जनसंख्या कुल इकाइयों से सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीकों से अभिलेखित प्रक्रिया जनगणना कहलाती है। तो जनगणना आप समझ गए होंगे, किसी भी दिए गए जनसंख्या कुल इकाइयों से सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से अभिलेख की प्रक्रिया जनगणना कहलाती है। और इस शब्द का इस्तेमाल प्रत्येक 10 वर्षों में अंतराल पर राष्ट्रीय स्तर पर घर घर की जनगणना के रूप में किया जाता है। लोगों के विभिन्न जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक संदर्भ के बारे में राज्यों की सहायता से भारत सरकार द्वारा आंकड़े एकत्र भी किया जाता है। तो जनगणना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इससे देश की जनसंख्या का पता लग जाता है और जनसंख्या के लिए सरकार के द्वारा बहुत से कदम उठाए जाते हैं इनके विकास के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जनसंख्या के मानव संसाधन बनने के कारक। देखिए, मानव अगर जनसंख्या के संसाधन के कारक बन रहे हैं तो देखा जाए जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ऊपर दी चर्चा के आधार पर आप अनुमान कर सकते हैं कि लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति और उनके विशेष प्रशिक्षण मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करती है। जैसे मैंने आपको समझाया भी है कि जब तक व्यक्ति शिक्षित, स्वास्थ्य, पोषण की स्थिति और उसका प्रशिक्षण मानव संसाधन के रूप में वो गुणवत्ता नहीं हासिल कर सकता है। लेकिन इनके अलावा जो है सामाजिक जनसंख्या कारक प्रमुख है जिनके प्रभाव जनसंख्या के संसाधन के रूप में पड़ता है। वो है जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या के वृद्धि और जनसंख्या की संरचना। ये तीनों कारक जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो जनसंख्या के मानव संसाधन बनने के कारक हैं और ये काफ़ी हद तक इसको प्रभावित भी करते हैं। इन तीनों कारकों को समझने की कोशिश करेंगे। हम जनसंख्या के विस्तार के बारे में आगे और भी चर्चा करेंगे, जिसमें हम उसके जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संरचना के बारे में आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जाने कि आगे क्या हुआ। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे चलो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए अपने मोबाइल में सेव करके। ठीक है, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करके ही आप तिरपान स्टडी सेंटर को हेल्प कर सकते हो। ठीक है, और कहते हैं सब्सक्राइब करना, तो ये तो आपके लिए ज़रूरी रह जाता है, क्योंकि मान लीजिए समय समय पर जो है तरह तरह के वीडियो आपके लिए डाले जाते हैं। अगर सब्सक्राइब करके मोबाइल में नहीं रखते हो तो हो सकता है कोई ऐसा वीडियो हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आप उसको मिस कर गए हो। और ये तभी आपको पता लगेगा जब आप सब्सक्राइब करके चैनल को रखोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो उसमें जो है 8 से MA तक के बच्चों के लिए प्ले लिस्ट का भी ऑप्शन है, जहाँ पर आप सारे वीडियो देख सकते हो। आप देखिए 8th क्लास से लेके MA तक होना एक आम बात नहीं है, इसे सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। जो रेड बटन आपको दिख रहा है उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ
जुड़ जाइए।